फर्स्ट ईयर मैम, सेकंड सेमेस्टर LLB। ओके, मतलब BA LLB 5 ईयर वाला या फिर 3 नो ईयर मैम, से? LLB। अच्छा, LLB है, वेरी गुड। तो इसका मतलब पहले तो ग्रेजुएशन में मतलब कुछ तो पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत। वी हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा है ड्राफ्टिंग। तो एवरीवन, Ma'am, is it fine if I give a brief introduction about you first? श्योर। Yeah. मुझे लगा पहले Okay. मेरा इंट्रोडक्शन दिया होगा इन लोगों ने। No, ma'am, we were waiting for you to join. अच्छा, ओके। Okay, so we will first start with the introduction. Good morning, everyone. Good afternoon, I guess it's good afternoon. So, good afternoon, everyone, for joining. Before starting with the session, we'll start with the introduction of our today's speaker. Our today's speaker is Advocate Anjali Chauhan. And Advocate Anjali Chauhan is a distinguished legal practitioner based in New Delhi with an extensive practice before the Supreme Court of India, Delhi High Court, and various tribunals and commissions. Enrolled with the bar in 2008, she has developed a strong litigation portfolio spanning civil, corporate, and regulatory matters, regularly appearing before multiple judicial and quasi-judicial forums. Operating from a chamber at the World Trade Center Lalit Hotel, Barkhamba Road, she serves as a senior panel counsel for the Union of India and the Supreme Court of India, and as a standing counsel for the Municipal Corporation. Reflecting her credibility in high-stakes government and institutional litigation, she has also been associated with leading bodies such as Coal India, SEBI, and the Bureau of Indian Standards, further strengthening her diverse practice. In addition, she is a mediator at the Supreme Court Mediation Center and has contributed as a legal member at the National School of Drama, showcasing her involvement beyond courtroom advocacy. Her practice extends across corporate litigation, taxation matters, consumer disputes, and company law proceedings, along with active engagement in mediation and dispute resolution. With her experience across trial and appellate forums, Advocate Anjali Chauhan brings a well-rounded, practical, and strategic approach to complex legal issues, establishing herself as a highly respected and versatile legal professional. So I guess that was introduction of Advocate Anjali Chauhan. And today's session is based on drafting. This is our first drafting session. And without further ado, we'll start with the session. Ma'am, over to you. Yeah. थैंक यू। तो ड्राफ्टिंग का पहले कभी कोई नहीं हुआ है इसके ऊपर? No, ma'am, this is the first session. ओके, ठीक है। फिर तो मुझे और अच्छे से बताना चाहिए आप लोगों को। ये तो एक सेशन है, बाकी आप लोग इसके ऊपर नोट्स भी बनाएंगे कभी आगे, कभी मेरी जरूरत पड़ी तो बताइएगा प्लीज। क्योंकि लीगल ड्राफ्टिंग जो है बेसिकली एक स्ट्रक्चर है हमारी लीगल प्रोफेशन का। अगर आपकी ड्राफ्टिंग सबसे बेस्ट है या स्ट्रांग है, उसी के भी आपके केस और आप जो प्लीड कर रहे हो कोर्ट में, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला तो हमारा फर्स्ट होता है कि काउंसलिंग करना अपने क्लाइंट्स को, चाहे वो कोई भी मैटर, सिविल हो, क्रिमिनल हो या BNS हो या कोई भी कॉर्पोरेट मैटर भी हो, तो वो सबसे पहले आपका मीटिंग पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने क्लाइंट की काउंसलिंग कर रहे हैं, आप किस तरह नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। ड्राफ्टिंग का स्ट्रक्चर इसलिए जरूरी है कि इवन आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने मैटर केसेस जो बना रहे हो, जो ड्राफ्टिंग कर रहे हो, उसमें आप क्या लिख रहे हो। कई बार आपने मूवीज देख रहे हो कि उनमें देखते हो कि जजेस कहते हैं कि आप ये क्या लिख लाए हो, तो ये एक्चुअल में भी होता है। सुप्रीम कोर्ट में कई बार होता है कि जजेस बड़े हैरान होते हैं कि ये एफएसएलपीस क्या ले आए हो, आपने बनाया क्या है, आपको पता ही नहीं है कि आप लिख क्या रहे हो, आपके क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, आपके ग्राउंड्स क्या है। सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली क्या होता है कि आपकी ड्राफ्टिंग के ही ऊपर वो डिसाइड करते हैं, वो आपको आर्गुमेंट का टाइम नहीं देते हैं। आप लोग बीच में मुझे यस और नो कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा बात करते हुए, थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को नॉलेज हो या आप लोग इंटर्नशिप किए हो कहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर आप किसी मैटर को लेकर जा रहे हो, मान लो कोई लैंड एक्विजिशन मैटर है और उसमें आपकी प्लीडिंग्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, आप बता ही नहीं पा रहे हो कि आप सेक्शन 14 में पहले गए हो डिपार्टमेंट में, आप कोई एप्लीकेशन लगाए हो या आपने कोई रिप्रेजेंटेशन फाइल करी है, आपने वहां पे कुछ मेंशन नहीं करा, बस आपने बताया दिस इज माय लैंड और दिस इज माय कंपनसेशन। तो जजेस बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि भाई ये लॉ ग्रेजुएट हैं और कुछ लोग तो मास्टर्स भी करके आए होते हैं, तो उनको लगता है कि इनकी लीगल ड्राफ्टिंग ही नहीं सही है, तो ये लॉयर बन कैसे गए। तो ये स्किल्स हमारे कब क्लियर होने चाहिए, जब आपका इंटर्नशिप पीरियड है, जब आप अब इंटर्न एज ए इंटर्न आप किसी भी लॉयर के अंडर कर रहे हो। सब लोग पहले, जब हम लोगों का टाइम था, तब कहते थे कि 5 साल आपको देने चाहिए प्रोफेशन में, जिससे आपके स्किल्स क्लियर हों, आपको बोलना है, आपको ड्राफ्टिंग करना है। अगर आपके पास एक लीगल नोटिस आ जाता है, मान लीजिए एक चेक बाउंस का आ जाता है, तो उनमें से आप में से कोई मुझे बताएगा थोड़ा बहुत कि क्या लिखना चाहेंगे, छोटा ही बताए, चाहे 2 लाइन में बताए।
एक चेक बाउंस का कोई मैटर आ गया, सेल एंड परचेज का है, कोई बोलना चाहेगा आप में से? चलो मैं बताती वही हूँ। बताएंगे मैम कि कैसे हुआ, कब हुआ, डेट, टाइमिंग, प्लेस, पार्टीज इन्वॉल्व, और फिर मतलब सेक्शंस वगैरह मेंशन करके, लाइक बीएससी सेक्शन 63B। नहीं, आप कभी लीगल नोटिस में कभी सेक्शन नो मैम, पहले तो हाँ रिस्पॉन्स करना पड़ेगा लीगल नोटिस का। हाँ, तो मैं बताती हूँ आपको। लीगल नोटिस के लिए सबसे पहले आपको ना अपने क्लाइंट से ये जानना है कि आपका बिजनेस क्या था, मान लीजिए, या फिर आपने क्यों लेन देन किया था, आपका कंसिडरेशन क्या था, या फिर आपने बोरो किया है। कुछ लोग होते हैं ना कि मैंने लोन लिया है, या फिर मैंने अपने बिजनेस पर्पज से लिया है, या मेरा सेल परचेज था, मैंने कुछ यहाँ पे सामान भेजा और उन्होंने मुझे चेक दिए और ये जब मैंने डाले थे बाउंस हो गए इनसफिशिएंट अमाउंट। तो उसमें सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसका बिजनेस बताना पड़ेगा, ही इज डूइंग सो एंड सो, या फिर मेरे क्लाइंट ने ये प्रॉपर्टी खरीदी। लीगल नोटिस कई तरह के होते हैं ना, तो आपका सब्जेक्ट और मैटर्स में क्लियर होना चाहिए कि लीगल नोटिस आप किस बिहाफ पर भेज रहे हो। एक उसमें टाइम पीरियड आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपका चेक बाउंस का टाइम कितना होता है और आप कब लीगल नोटिस भेज सकते हो। सेक्शन अभी आप क्यों नहीं हर एक लीगल नोटिस में क्यों नहीं डिफाइन कर सकते, जैसे प्रॉपर्टी मैटर्स में अगर एविक्शन का कोई लीगल नोटिस है तो आप वहां पे सेक्शन डिफाइन कर सकते हो। तो ये मतलब इसमें भी बेटा कैटेगरी होती है कि आप लीगल नोटिस में कहाँ पर आप लीगल में सेक्शन डिफाइन कर सकते हो, कहाँ नहीं। ये आपको सारा देखना पड़ेगा। लीगल नोटिस भी छोटी चीज नहीं होती है, वो सबसे पहला बेस होता है किसी भी केस का। सूट ऑफ रिकवरी हो, सूट ऑफ पोजेशन हो, या परमानेंट इंजंक्शन हो, आपको सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि वी आर गिविंग यू टाइम ऑफ 15 डेज और 30 डेज। आपका ये चेक आया था, बाउंस हो गया, अब आगे क्या करना, नहीं होता तो फिर आपको पता है कि उसके आगे फिर लिटिगेशन शुरू होती है। तो सबसे पहले आपको लीगल नोटिस, रिप्रेजेंटेशन भी ऐसे ही एक स्मॉल पार्ट है इसका ड्राफ्टिंग का। रिप्रेजेंटेशन हमारा, जैसे मान लीजिए आपके एम्प्लॉयज के मैटर्स हैं, पेंशन के मैटर्स हैं, या किसी भी प्रोविडेंट फंड के मैटर्स हैं, या किसी भी ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी केस आ गया आपके पास, तो आपको, या लैंड एक्विजिशन मैटर है, तो सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा कि ये मेरा ऑर्डर था, ये मेरा क्लेम था, या ये मैं एम्प्लॉय हूँ और मुझे ये अपना रिलीफ चाहिए। ये कोर्ट का प्रोसीजर है, चाहे आप हाई कोर्ट जाए रिट में या सुप्रीम कोर्ट जाए। तो सबसे पहले आपको अपना रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में सॉरी अपने डिपार्टमेंट में भेजना पड़ेगा, अपने क्लाइंट के बिहाफ पर, अपने नाम से नहीं, क्लाइंट के बिहाफ पर, कि ये हमारा क्लेम है। मान लीजिए पेंशन का मैटर है कोई, उसमें आपके पास 1500 लोग हैं जिनका पेंशन रुका हुआ है, और उसके साथ जो उनका पीएफ एंड ऑल कटता था, अदर अलाउंसेस, वो भी नहीं दे रहे हैं। तो आप उनके प्रोफाइल वाइज लिस्ट बनाकर, पूरा रिप्रेजेंटेशन बनाकर डिपार्टमेंट को देंगे। अगर वो उसका रिप्लाई नहीं देते हैं या फिर उसके आगे प्रोसीड नहीं करते, देन यू कम टू डायरेक्टली इन रिट पिटिशंस। रिट पिटिशन में आप हाई कोर्ट जाएं पहले। अगर हाई कोर्ट में आपका रिलीफ नहीं मिलता, कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट भागते हैं, पीआईएल फाइल कर देते हैं। नहीं, हमें पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। हाई कोर्ट स्टेट का एक, नेशनल लेवल का एक हमारा जुरिडिक्शन होता है, जहाँ पे हमें सबसे पहले क्लेम करना चाहिए। बहुत सारे डिपार्टमेंट, somebody is asking something, गुरकीरत, yes। मैम दिस इज अ प्रोसेस ऑफ अ नोटिस जो आप बता रहे हो कि नहीं, मैंने नोटिस का बता दिया आपको, लीगल नोटिस इसका। नहीं मैम, जो आप नाउ वी आर प्रोसीजर बता टॉकिंग रहे हो कि लिस्ट बनानी है उसमें, तो वो नोटिस में बनानी है कि वो अलग से भेजनी है? वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रेजेंटेशंस। लीगल हाँ जी। नोटिस की तरह ही एक पार्ट में आपको ड्राफ्टिंग का बता रही हूँ, रिप्रेजेंटेशंस होते हैं जो, जैसे मैंने आपको बताया, पेंशन मैटर्स होते हैं, लैंड एक्विजिशन के मैटर्स होते हैं, या कोई भी डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉय है, उसके साथ कोई हेरेसमेंट हो रहा है, या कोई उसको अपनी जॉब में कुछ प्रमोशन चाहिए, या उसका कोई ट्रांसफर है जो इलीगल उसका रोका जा रहा है, तो हम ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए लीगल नोटिस नहीं भेजते, वहां पे हमें रिप्रेजेंटेशंस भेजने होते हैं। ओके। आपको लिस्ट वो बनानी है कि आपके पास कितने लोग हैं, कितने लोगों के साथ हो रहा है। इंडिपेंडेंट है तो आप ऑल आर इंडिविजुअल, अफेक्टेड। जी जी यस। तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है। कोई एम्प्लॉय है तो आप उसके लिए क्या रिलीफ मांग रहे हो, तो आपको रिप्रेजेंटेशन में मेंशन करना पड़ेगा। दिस इज द पार्ट, लाइक जैसे आपको लीगल नोटिस का मैंने पहला बताया कि लीगल नोटिस भी एक शुरुआत होती है लिटिगेशन की, इसी तरह रिप्रेजेंटेशन भी एक शुरुआत होती है। ठीक है, इसी बैंक के मैटर्स में भी ये होता है कि बैंक के सारे केसेस में आपको लीगल नोटिस भेजने पड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे आ गए आपके,
या एनएसडी हो गया, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, यहाँ पर भी आप सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन दोगे। किसी भी एम्प्लॉय से रिलेटेड है, कोई भी ऑटोनॉमी बॉडी है, तो वहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रायल कोर्ट से। ट्रायल कोर्ट की ड्राफ्टिंग के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि हमें किस तरह केसेस तैयार करने हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, कोई प्रॉपर्टी मैटर है, दो भाइयों का केस है, वहां पे एक विल बनाकर चली गई उनकी मदर कि भैया ये पार्टीशन इसका है, ये पार्टीशन इसका है। तो दिल्ली की लॉ के अकॉर्डिंग आपको जरूरी नहीं है कि आपको विल प्रोबेट कराना पड़े, ये बहुत कम लोग बताते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेट केस फाइल कर देते हैं। यहाँ पर हमें डायरेक्टली सूट फॉर पार्टीशन फाइल करना है। आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ द सूट्स जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करे जाते हैं, ठीक है। सूट्स में क्या है कि सबसे पहले आप सूट फाइल करोगे, उसमें आप मेंशन करोगे कि आपको आपका ये विल था, विल रिलेटेड ये था, और आपकी मदर लास्ट लीगल हायर थी मेरे फादर के बाद, ये प्रॉपर्टी थी, और इसमें हमारा 50-50% पेरेंट्स ऑलरेडी डिसाइड करके गए, लेकिन जो मेरा ब्रदर है वो ना मुझे पोजीशन दे रहा है ना मेरा पार्टीशन दे रहा है। तो यू कैन फाइल द सूट फॉर पार्टीशन, डोंट फाइल ए सूट फॉर, या सॉरी, डोंट फाइल ए प्रोबेट केस, आपको फाइल करना पड़ेगा सूट फॉर पार्टीशन कि ये हम दोनों का है। इसी तरह अगर आपका कोई दूसरा मामला है कि आपने कोई रेंट पे प्रॉपर्टी दी है और आपको वापस चाहिए, तो उसके सबसे पहले आप फाइल करोगे सेक्शन 14 का लीगल नोटिस, जो मैंने आपको बताया कि मुझे एविक्शन चाहिए अपने प्रॉपर्टी का। चाहे आपका वो रेंट जो है, रेंट एग्रीमेंट, वो भी चालू भी है और आपको बोनाफाइडली अपने बच्चे के बेनिफिट के लिए, या कुछ भी आपको लग रहा है वहां पे इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो यू कैन एक्सप्लेन देयर कि लीगल नोटिस आप क्यों भेज रहे हो, आप एविक्शन क्यों कराना चाहते हो। अगर वो आपको 30 डेज में उसका जवाब नहीं देते हैं, वो जगह खाली नहीं करते, देन यू हैव टू फाइल द सूट फॉर पोजीशन या परमानेंट इंजंक्शन आल्सो। सूट फाइल करने के बाद सेकंड प्रोसेस होता है कोर्ट में। जब आपने सूट फाइल कर दिया प्लेंटिफ की तरफ से, तो जज साहब उसमें क्या करते हैं, नोटिस इशू कर देते हैं और सम्मन करते हैं। सम्मन का प्रोसेस होता है कि जो आपको प्लेंटिफ हो, जिसने ये केस फाइल करा है, प्लेंटिफ को थ्रू ऑफ कोर्ट सर्विस करानी पड़ती है डिफेंडेंट को। फर्स्ट पार्टी होती है प्लेंटिफ, सेकंड पार्टी होती है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट 1, 2 जितने भी आपके मिलेंगे उसमें पार्टीज में, उनको सबका मेंशन करना पड़ेगा आपको अपने केस में जब आप सूट बना रहे हो, कि डिफेंडेंट नंबर 1 है, डिफेंडेंट नंबर 2 है, इसका एड्रेस ये है, और कोई कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। उसमें आप उसका फोन नंबर और उसका ईमेल आईडी अगर आप अवेलेबल कर सकते हो तो वो भी देना पड़ेगा। बाय चांस आपने प्रोसेस फीस होता है फिर कोर्ट में आपको प्रोसेस, मैं इसलिए बता रही हूँ, बेसिक चीजें आपको कोई नहीं बताएगा ड्राफ्टिंग में। आप कोर्ट के थ्रू पीएफ फाइल करते हैं, प्रोसेस फीस कहते हैं उसको, कि आप एक कॉपी एडवांस कॉपी कोर्ट में देंगे, कोर्ट के थ्रू वो कॉपी सम्मन्स के थ्रू डिफेंडेंट नंबर 1 के पास जाती है, उसकी पूरी रिसिप्ट होती है जो रिकॉर्ड कोर्ट में दर्ज फाइल किया जाता है। जब अगर डिफेंडेंट नंबर 1 कह देता है भाई मुझे ये कॉपी नहीं मिली, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे कर देते हैं अदर साइड लॉयर्स कि भाई हम नहीं लेना चाह रहे, अच्छा है चलता रहे मैटर, तो सेकंड ऑप्शन होता है कि आप पब्लिकेशन कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, न्यूज़पेपर में निकाल देते हो, जिसे आप सब्स्टिट्यूशन ऑफ सर्विस कहते हैं। और ये सब नहीं भी हो पाता, ईमेल कर दिया आपने, व्हाट्सएप कर दिया या फोन नंबर पे भेज दिया, कुछ भी करा, उसके बाद भी वो नहीं लेते, तो चौथा होता है सब चस्पा कराना। चस्पा होता है एक आपको छोटा माइनर फीस भरना पड़ता है कोर्ट में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ मैटर। वो क्या करते हैं, आपका एलमद होता है जो जज साहब के साथ बैठते हैं, उन्हें मुंशी कहते हैं ना, एलमद जाता है वहां पे उनके घर के बाहर चस्पा करके आता है कि ये प्रॉपर्टी के ऊपर ये विवाद चल रहा है और आपको इस डेट पे अपेयर होना है। इसको कहते हैं प्लेंटिफ के केस के नोटिस इशू होने के बाद सम्मन कराना। तो ये सारे 3-4 उसमें ऑप्शन होते हैं कि आप सम्मन कैसे कैसे करा सकते हो, पब्लिकेशन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, कोर्ट के थ्रू तो सम्मन जाते ही हैं, आप न्यूज़पेपर में निकलवा सकते हो, या कोर्ट के अलमत के थ्रू आप चस्पा करा सकते हो। यस। एक होता है दस्ती सर्विस। दस्ती सर्विस कहते हैं, कभी कभी आप लोग अपने जहाँ पे आप इंटर्नशिप करते होगे लॉयर से सुनते होगे कि जैसे जज साहब ने कहा नोटिस इशू, तो हम कहते हैं लॉर्डशिप कैन यू गिव मी एडवांटेज फॉर द दस्ती सर्विस। दस्ती सर्विस होता है कि हम पर्सनल जाके वहां पे सर्व कर कर आए कॉपी, जिससे हमारा केस जल्दी चले। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, थर्ड स्टेप होता है आपका, कि जब आपको वहां पे आपने सर्विस करा दी है, उसके बाद होता है डिफेंडेंट्स की टर्न होती है, उनको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना होता है, जिसे रिप्लाई भी कहते हैं।
और रिट पिटीशन में काउंटर एफिडेविट कहते हैं, एसएलपीज में सुप्रीम कोर्ट में उसको काउंटर एफिडेविट कहते हैं, सूट्स का उसको रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। वो विद इन 60 डेज आपको मतलब करना पड़ता है। अगर डिले होती है तो उसको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले सेक्शन 151 में उसके साथ लगा के आपको डिले एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि आपकी डिले क्यों रही है। अब जब आपका डिफेंडेंट वहां पे रिटन स्टेटमेंट फाइल कर देता है, कभी कभी क्या होता है वो डिले हो जाती है, नहीं फाइल कर देते, या एविक्शन सूट में लीव टू डिफेंड फाइल करते हैं, वो उसमें भी डिले हो जाती है। तो इसके लिए इनका ये होता है एक ऑप्शन कि एक आप एप्लीकेशन लगा सकते हो कि आपको दोबारा से राइट दिया जाए, या आप पे कोई वैलिड रीजन है, मेडिकल है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, कुछ भी है कि आप क्यों नहीं फाइल कर पाए, तो कोर्ट वैसे 90% उसको ऑब्जेक्शन रिमूव कर देती है कि आप फाइल कर सकते हो। इसके बाद फोर्थ स्टेप आता है रिटन स्टेटमेंट के बाद। somebody is asking, दीपाली, yes दीपाली। मैम कॉन्डोनेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है क्या? जैसे रिस्पांस के लिए 60 डेज का होता है, वैसे अगर डिले हो गया तो उसको कॉन्डोन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल है? ऑब्वियसली आपका ऑलरेडी टाइम निकल गया और आपको डेट लगी है, जज साहब बोले कि नहीं नहीं आप रिटन स्टेटमेंट नहीं फाइल कर सकते, आपका टाइम ऑलरेडी जा चुका है, लिमिट से ऊपर है। तो विद इन अ वीक आपको मेरे ख्याल से कॉन्डोनेशन ऑफ डिले कर देनी चाहिए। तो वहां पे तो लॉयर्स खुद ही इतने हरी में रहते हैं कि हमारा ये राइट चला ना जाए, क्योंकि फिर वो आगे आपके सारे राइट क्लोज होते रहते हैं, आप अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर पाओगे ना। अब मैंने कोई केस फाइल करा है, मैं आपको एलिगेशन लगा रही हूँ कि भैया ये मेरी प्रॉपर्टी लेकर बैठे हैं, या मेरा ये मेरा कुछ ऐसा सामान है जो लेकर बैठे हैं, या मेरा ये पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर पाओगे अगर आप रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करोगे। तो आप ऐसा करो, आप थोड़ी थोड़ी क्वेरीज अपनी बना कर रखो, जो हमारा लास्ट सेशन होगा, लास्ट टाइम होगा ना, उसमें मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगी, आप मुझसे पूछेगा, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज जरूरी होती है हमारे लिए, है ना। जी जी मैम, yes. थैंक यू। है ना। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद आता है रेप्लिकेशन। अगर प्लेंटिफ को लगता है कि रिटर्न स्टेटमेंट में आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स डाल दिए हैं और कोई ऐसे डॉक्यूमेंट लगा दिए एडिशनल जो हमारे अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो प्लेंटिफ पे भी राइट होता है, ही कैन फाइल द रेप्लिकेशन। इसके बाद मेन पार्ट शुरू होता है ट्रायल का, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सिविल का बता रही हूँ मैं अभी आपको, क्रिमिनल नहीं बता रही हूँ। सिविल में आता है फिर इशू फ्रेम। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को दोनों को टाइम दिया जाता है कि आप अपने इशू फ्रेम करिए, आपके क्या क्या इश्यूज हैं। कि जैसे इशू फ्रेम करना होता है लाइक, क्या ये जो विल बनाई गई थी इसमें आपके जो विटनेस है वैलिड है, ये प्लेंटिफ ये डिफेंडेंट बना सकता है। अब प्लेंटिफ ये लिख सकता है कि क्या मेरी मदर ने हम दोनों का ये पार्टीशन नहीं दिया था, या फिर या ये चेक इस डेट को इशू नहीं हुआ था, क्या आपके पास इस जो मैंने सेल परचेज आपसे करा है इसकी आपके पास स्लिप नहीं है। इस तरह के आप इशू फ्रेम करते हैं। इशू फ्रेम की एक लिमिटेशन होती है, आप 5 से 6 आप इशू फ्रेम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा शुरू होता है एडमिशन डिनाइल। एडमिशन डिनाइल इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें हमें अपने क्लाइंट से एक एक डॉक्यूमेंट जो हमने लगाया है उसके ऊपर पूछा जाता है कि ये जो डिफेंडेंट ने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं ये आप एडमिट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कि ये विल एडमिट कर रहे हो आप, ये मदर बनाई है या नहीं, सीरियसली ये रजिस्टर्ड विल है, ये आपकी मौजूदगी में बनाई गई है, तो इसे एडमिट करोगे डिनाई करोगे। उसका एक पूरा फॉर्मेट होता है एडमिशन डिनाइल का, दोनों पार्टीज को एडमिशन डिनाइल करना पड़ता है। फिर सबसे मेन पार्ट शुरू होता है एविडेंस का। एविडेंस में क्या होता है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अपने अपने क्लाइंट्स के एविडेंट वे ऑफ एफिडेविट फाइल करते हैं। उसके बाद वो एफिडेविट फाइल होने के बाद क्रॉस शुरू होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसमें हमें बैठ के पूरी पिटीशन को ध्यान देते हुए और अपने क्लाइंट से बात करते हुए क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं उन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। आप कोई अदर डॉक्यूमेंट तब दोबारा नहीं फाइल कर सकते, जो आपने लगाए हैं वही होंगे। और जो आप रजिस्टर विल दिखा रहे हो, रजिस्ट्रार तक को आप कॉल कर सकते हो गवाही ये एविडेंस के लिए। आप कोर्ट को लिस्ट ऑफ विटनेसेस दोगे कि मैं इन इन विटनेस को इन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर बुलाना चाहता हूँ और इनका क्रॉस करना चाहता हूँ, तो ये आप लोग कर सकते हो। जब ये एविडेंस एफिडेविट का क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है, फिर होता है फाइनल आर्गुमेंट। फाइनल आर्गुमेंट के बाद होता है डिक्री, डिक्री ऑर्डर। डिक्री जब हो जाती है तो डिक्री की एक लिमिटेशन होती है 12 साल तक। अगर डिक्री ऑर्डर मान लीजिए प्लेंटिफ के फेवर में हो गया और वो उसको कंप्लाई नहीं करता है डिफेंडेंट, तो उसके पास राइट है कि वो एक एग्जीक्यूशन फाइल कर सकता है। एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन उसी कोर्ट में लगेगी कि ये डिक्री ऑर्डर इस डेट को हुआ था, लास्ट जजमेंट है, और उसके बाद भी ये उसको कंप्लाई नहीं कर रहा है, और उसी के बिहाफ पर कंटेम्प्ट भी लगा सकते हो, लेकिन पहले आपको एग्जीक्यूशन लगा। अगर वो उसके बाद भी एग्जीक्यूट नहीं करता देन यू कैन फाइल द कंटेम्प्ट पिटीशन।
इसी तरह हम अब ट्रायल कोर्ट के क्रिमिनल पे आते हैं। देखो अभी मैं आपको बहुत ज्यादा तो एक्सप्लेन में, क्योंकि इतना बड़ा है हमारा लॉ ना, वाइड है, कि आप जब केसेस के बारे में मुझे टॉपिक वाइज पूछने बैठोगे कभी, तो ये बहुत कुछ होता है। इसलिए मैं बोलूंगी कोई भी टॉपिक आपके पास आए, कोई भी सब्जेक्ट मैटर आए, उस पर ड्राफ्टिंग में ना पहले उसका प्रोसीजर जरूर समझना। और अब तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हम जहाँ से हम पढ़ सकते हैं। आई थिंक काफी सारी ऑनलाइन क्लासेस भी मिल जाती है हमें। अब क्रिमिनल में हम सबसे देखते हैं, पहले मान लीजिए कोई कंप्लेंट फाइल हुई है, पोस्को मैटर का देख लेते हैं, माइनर रेप हुआ है, कोई कंप्लेंट फाइल हुई है लड़की की, या 498 ही कर लेते हैं, सबसे आसान है। 498 में एक लड़की ने कंप्लेंट फाइल करी महिला थाने में, थाने में या महिला आयोग में। वहां पे क्या होता है कि सबसे पहले महिला आयोग में बुलाया जाता है लड़की को, उसकी स्टेटमेंट लिखी जाती है कि ये जो आपने लिखा है क्या क्या हुआ था आपके साथ, वहां पे पूछा जाता है। फिर सेकंड पार्टी को बुलाया जाता है। अगर वहां पे कोई समझौता नहीं होता, वुमेन सेल का बड़ा लिमिटेड रोल होता है लिटिगेशन में, लीगल प्रोफेशन में, क्योंकि वो कोई फैसला नहीं ले सकते। वो इतना कर सकते हैं कि या तो समझौता करा सकते हैं, अगर कोई समझौता नहीं होता तो उस कंप्लेंट को वो पुलिस स्टेशन भेज देते हैं, जो एक क्रिमिनल कंप्लेंट के रूप में बदल जाती है। कोई समझौता अगर हो जाता है वहां पे, तो एक वो सेटलमेंट डीड बनवाते हैं वहां पे, और वुमेन सेल की स्टैंप लग के एक म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स या कोई भी म्यूचुअली, कोई सीनियर सिटीजन का भी अगर केस है तो सीनियर सिटीजन सेल में भी म्यूचुअली कोई भी सेटलमेंट डीड बनेगा, और फिर वो कोर्ट में एक नॉर्मल म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स फाइल करा जाएगा, या कोई भी केस फाइल कराएगा, ये हमारा फैसला हो गया है, आपसी समझौता हो गया और हम दोनों तैयार हैं। अब उसके आगे क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हो गई है 498 की, वुमेन सेल में कोई समझौता नहीं हुआ और लड़के ने मना कर दिया मैं इसको रखना भी नहीं चाहता हूँ, और जो ये डिमांड करी है मुझे ये भी नहीं करना है। तो अब उसके आगे क्या होता है कि एक क्रिमिनल कंप्लेंट बनती है, जो जो जुरिडिक्शन में थाना आता है ना, उसके अंदर ही कंप्लेंट जाती है, जिसको क्रिमिनल कंप्लेंट कर देते हैं। उसके आगे का प्रोसेस होता है कि जो भी रहनुमा, और जो भी आपका, सॉरी हिंदी यहाँ पे मुस्लिम वर्ड बड़े यूज होते हैं क्रिमिनल में, तो जितना जो आपका एसआई या फिर आईओ जो अपॉइंट किया जाता है, उसके थ्रू आपकी क्रिमिनल कंप्लेंट जाती है महिला इसमें, महिला कोर्ट में, एमएम जिसे कहते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। यहाँ पे अलग कोर्ट्स बनी होती है 498 की, वहां पर ये केस जाएगा, वहां पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी लड़की की दोबारा, और उसके बाद जो अदर पार्टीज है उनको वारंट इशू होंगे या समन्स दिए जाएंगे। अगर वो नहीं अपेयर होते तो उनके वारंट इशू भी हो सकते हैं। उसके बाद उनको, ये कंपलसरी है, उनको बेल लेनी पड़ेगी वहां पे एंटिसिपेटरी, जितनी भी पार्टीज हैं सबको। फिर उसका क्रिमिनल ट्रायल शुरू होता है। इसी तरह रेप के मैटर में कोई एफआईआर हुई है, एफआईआर ऐसे मैटर्स में पोस्को हो गया, पोस्ट मैटर हो गया, या फिर आपका कोई रेप मैटर है या कोई बहुत बड़ा मर्डर ब्रूटल है, इनमें टाइम नहीं लगता। उसमें क्या होता है, आपको इंसिडेंट्स में जाना पड़ता है, पुलिस को वो पूरा ब्यौरा बनाते हैं, पंचनामा, आपकी चीजें सीज की जाती हैं, एफएसएल रिपोर्ट होती है, एमएलसी के लिए सारी चीजें भेजी जाती हैं। अगर कोई मर्डर हुआ है तो बॉडी को भेजा जाएगा कि आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए। ये सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद वो एफआईआर दर्ज कर देते हैं और सीधा जुडिशियल कस्टडी में एक्यूज को उठाकर कोर्ट में अगले दिन ही पेश कर देते हैं। मीनवाइल उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं और कोर्ट समय लेती है कि जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती, मीनवाइल आपकी एफएसएल रिपोर्ट आए, एमएलसी आए, और आपके बाकी जो भी वहां पे आपको जो भी सामान मिला है, कोई मान लीजिए कोई वेपन मिला है, वो भी कहीं पर गया है टेस्ट के लिए, एफएसएल के लिए, तो उसका वेट किया जाता है। जब आईओ इन सब की इंक्वायरी करके एमएलसी एंड ऑल की, कभी कभी अभी रिसेंटली मेरे पास एक मर्डर का मैटर आया है, तो उसमें क्या है, अभी तक एफएसएल रिपोर्ट नहीं आई है ना एमएलसी रिपोर्ट आई है, लेकिन जज ने उसको बोला है कि काफी दिन हो गए, अब पूरा कम से कम 1 साल होने को आया है, तो आप इसकी चार्जशीट फाइल करिए, इसमें डिले मत करिए। जो भी आपके पास गवाहियां हैं, जो भी आपके पास विटनेसेस है, उनके बिहाफ पर आप चार्जशीट फाइल करिए। तो चार्जशीट में क्या लिखा होता है, बेसिकली मैं बता रही हूँ, अगर नहीं है एमएलसी की रिपोर्ट एफएसएल की, तो उनको कोर्ट ऑर्डर करती है कि आप जल्दी से जल्दी कीजिए। रेप और ये जो जितने भी मतलब सीरियस मैटर्स होते हैं, ये एडीजी के पास जाते हैं, ये एमएम के पास नहीं जाते। somebody is asking something, who is raising a hand? Yes, Ma'am, I have a question. yes. Ma'am, if एकदम grievous crime हो गया है like rape, तो उस पे अगर if there's a lapse of time, अगर 5 months का time elapse हो गया है, and even then the police have not given out a charge sheet, तो what would be the procedure for that? उसके लिए हमें एक कोर्ट में ही बोला जाता है और उसमें बताया जाता है ये यहाँ पर डिले चल रही है,
स्टेट के थ्रू बोला जाता है। और अगर आईओ कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो उसके अगेंस्ट भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो कि जब सारे एफएसएल रिपोर्ट आ गए, एमएलसी रिपोर्ट आ गए, उसके बाद ये चार्जशीट क्यों नहीं बना रहे हैं। और आपके पास विटनेसेस की लिस्ट है जो आसपास लोग जानते थे कि काफी दिन से, एक एग्जांपल दे रही हूँ, काफी दिन से इस लड़की का रेकी कर रहा था या फिर इसको परेशान कर रहा था, तो इस तरह के एविडेंस के लिए विटनेसेस को लिखा जाता है। या फिर एक मैं प्रोस्टिट्यूट का मैटर बताती हूँ पहाड़गंज का। वहां पर पता चला कि एक लड़की को रेस्क्यू किया गया है, जो बेंगलोर से उसको लेकर आया दिल्ली। वो लड़की माइनर है। तो उसमें क्या हुआ, एक एनजीओ टीम थी जिनको ये बात पता चली। एनजीओ टीम ने पुलिस वालों को बताया, जो नियर बाय पुलिस स्टेशन था चांदनी चौक का, ऐसे ऐसे एक लड़की आई है जिसको ये लेकर आए हैं और ये इस जबरदस्ती इसको प्रोस्टिट्यूट में डाल रहे हैं। जब वहां पर गए एनजीओ वाले और ये पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने से पूरी टीम वहां पर गई, तो लेडीज पुलिस भी जाती है। तो उन्होंने क्या करा, जब वहां पर उनको लेकर गए, उस लड़की को ले आए, बाकी जो 14 लड़की पकड़ी गई उनमें से वो जो मेन लड़की थी उसको इन्होंने एनजीओ में रखा। उसके बाद इन्होंने क्या करा, ट्रायल चलता रहा कि भाई अभी एफएसएल रिपोर्ट आ रही है, सीमेन रिपोर्ट आ रही है कि भाई क्या कितनी बार लड़की की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो गई। आईओ ने चार्जशीट नहीं फाइल करी, वो डिले पे डिले कर रहा था। फिर उसके अगेंस्ट एनजीओ और स्टेट के वकील ने, पीपी ने कंप्लेंट फाइल करी कोर्ट में कि इतना समय बीत गया है। वैसे तो आई थिंक 60-90 डेज में आपको कर देनी चाहिए, मैक्सिमम 90 डेज, पर आप इसको एक्सटेंड करे जाओ रहे, 1 साल हो गया। आप सोचो ये बहुत हीनियस क्राइम है, रेप का मैटर या फिर माइनर पोस्को मैटर, तो इसमें आप कैसे डिले कर सकते हो। तो इसके ऊपर आप कोर्ट में जब भी आप इस तरह की एप्लीकेशन या आप वहां पे स्टेटमेंट या आर्गुमेंट करोगे, तो जज उसके लिए स्पीडी ट्रायल के लिए बोलता है। और जहां पर एडीजे भी एक्शन नहीं ले रहा है, तो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट या फिर कोई भी हाई कोर्ट, जिस भी स्टेट का मैटर है, यू कैन फाइल द डायरेक्ट रेट देयर कि यहाँ पर ऐसे ऐसे मैटर है और अभी तक कोई मतलब ट्रायल ही नहीं चल पा रहा है, उन्होंने बहुत डिले कर रखा है। मैं आपको बता रही थी कि चार्जशीट फाइल होती है, तो चार्जशीट में क्या क्या आपके कंटेंट होते हैं। सबसे पहले आपकी जो भी केस डायरी बनी है, पुलिस वाले बनाए हैं, जो भी आपका आयु है वो पूरी केस डायरी बनाते हैं। विटनेसेस की लिस्ट होती है कि ये लोग गवाह हैं, ये एफएसएल रिपोर्ट है, ये एमएलसी रिपोर्ट है। एमएलसी रिपोर्ट के बाद जो इन्होंने हायर डॉक्टर से या फिर सीनियर डॉक्टर से ओपिनियन लिया, उसकी भी होती है। कोई वेपन्स मिले हैं किसी मैटर में तो उसकी भी पूरी रिपोर्ट्स लगाई जाती है। एमएलसी में पूरा डिस्क्राइब किया जाता है कि उसको क्या घाव थे या उसका रेप हुआ तो उसमें क्या क्या आया है, वो भला हैबिचुअल थी या पहली बार उसके साथ ऐसे हुआ है, ये सारा उसमें प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया जाता है। अब जब चार्जशीट फाइल हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है एविडेंस का, गवाहियों का। तो गवाहियों में जितने भी आपके लिस्ट ऑफ विटनेसेस दिए हैं, कोर्ट उनको 1 बाय 1 सम्मन करती है और उनको बुलाकर स्टेट या फिर जो भी आपके कंप्लेनेंट के लॉयर्स हैं और अक्यूज के लॉयर भी, दूसरी तरफ के पार्टीज के जो विटनेसेस हैं उन सबका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, वहां पे एविडेंस होता है प्रॉपर वे में, और वो सारा ऑन द रिकॉर्ड एक एक चीज उसमें नोटिस की जाती है। कंप्लेन जैसे रेप हो गया मैटर या ये पोस्को के मैटर्स हो गए, माइनर मैटर्स हो, माइनर रेप हो गया, इनके लिए ना अलग विटनेस बॉक्सेस होते हैं कि जो हमारा, मान लो कोई छोटी उम्र की लड़की है 14-15 साल की, तो जो आपके कोर्ट रूम्स होते हैं इनके, इनसे अलग विटनेस रूम बनाए जाते हैं जहाँ पे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे मतलब बहुत कंफर्ट जोन दिया जाता है कि उसको बोलने में या उसको कोई बरखलाए ना या उसे डर ना हो कि मेरे पास 10 लोग बैठे मैं क्या बोलूं। तो ये सारा वहां पे प्रोसेस होता है। जब आपका एविडेंस खत्म हो जाता है, उसके बाद शुरू होता है आपका फाइनल आर्गुमेंट। इस बीच में आप कोई और डॉक्यूमेंट नहीं फाइल कर सकते। फाइनल आर्गुमेंट जब आपका एविडेंस का ये क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है, एविडेंस और क्रॉस एग्जामिनेशन का, फाइनल आर्गुमेंट्स में आप कोई भी अपने रेफरेंस ऑफ जजमेंट, जिसे पिलर ऑफ द लीगल कहते हैं ना, लिटिगेशन, तो कोई भी अगर रेलिवेंसी, कोई आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं तो आप ऐसे जजमेंट्स लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट में लगा सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ट्रायल कोर्ट में लगा सकते हैं। लेकिन ट्रायल कोर्ट में अगर आप किसी अदर ट्रायल कोर्ट के जजमेंट्स लगाएंगे तो वहां नहीं मानी जाएगी, आपको हायर कोर्ट के जजमेंट्स लगाने पड़ेंगे रेफरेंस के लिए। अब ये हो गया ट्रायल कोर्ट का प्रोसेस और ये बहुत वाइड है, इसको मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि इसमें अभी तो कमर्शियल कोर्ट्स का भी रह गया है, उसके लिए भी मैं काफी आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी मगर टाइम इतना मुझे मिलेगा नहीं। अब हम चलते हैं जुडिक्शन हाई कोर्ट की तरफ। हाई कोर्ट का जुडिक्शन होता है, एक ओरिजिनल होता है
जो आप लोगों को शायद जनरल नॉलेज हो कि 2 करोड़ से ऊपर के जुडिक्शन के जितने भी मैटर्स हैं वो हाई कोर्ट जाते हैं, और 2 करोड़ से नीचे के जितने भी जुडिक्शन के मैटर्स हैं तो वो हमारे ट्रायल कोर्ट में जाते हैं। और कोई सर्विसेज मैटर है तो हमारे जैसे कंज्यूमर फोरम है या फिर ट्राइब्यूनल्स बने हैं, ये वहां जाते हैं। और 2 करोड़ से ऊपर के कोई सर्विस मैटर या कुछ इस तरह के ट्राइब्यूनल से रिलेटेड मैटर है, जैसे लेबर लॉ हो गया, इनकी अलग अलग कोर्ट्स बनी हुई है, एनसीडीआरसी हो गया, एनक्लेट हो गया, और आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, इनके सबके अलग अलग कोर्ट्स बने हुए हैं। एमसीडी के लिए एटीएमसीडी बना हुआ है नीचे ट्रायल कोर्ट में, और उससे ऊपर आपका हाई कोर्ट है एटीएमसीडी का जुडिक्शन। अब हाई कोर्ट में आपके 3 होते हैं, एक तो ओरिजिनल हो गया, एक आपका अपील हो गया जिसमें एलपीए, और आप ये कोई भी अपील फाइल कर सकते हो ट्रायल कोर्ट के अगेंस्ट में, और ओरिजिनल सूट होता है जो डायरेक्टली आप हाई कोर्ट में डायरेक्टली फाइल कर सकते हो। कोई प्रॉपर्टी 2 करोड़ से ऊपर की है, कोई भी ऐसा कमर्शियल अमाउंट है जो 2 करोड़ से ऊपर आता है, वो आप ओरिजिनल सूट फाइल कर सकते हो दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसका भी सेम प्रोसेस यही होता है। और अपील होती है, मान लीजिए कोई, जैसे मैंने आपको डिक्री का एक एग्जांपल बताया था, वो वहां पे एग्जीक्यूट ना होकर आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं हाई कोर्ट में, तो वहां पर आप एलपीए फाइल कर सकते हो। उसके अगेंस्ट अगर कोई ऑर्डर आपको बीच में ऐसे लगता है, आप रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पर ये एक अपील सेक्शन अलग हो गया, ओरिजिनल साइड अलग हो गया। ओरिजिनल साइड में सेम जो प्रोसेस नीचे रहता है कि पहले सबसे पहले सूट, फिर रिटन स्टेटमेंट, एप्लीकेशंस, उसके बाद एविडेंस इशू फ्रेम, एडमिशन डिनायल, और फिर उसके बाद आपका एविडेंस एफिडेविट, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन, देन फाइनल हियरिंग, जजमेंट और डिक्री ऑर्डर। ये प्रोसेस सेम दिल्ली हाई कोर्ट में ओरिजिनल साइड में फाइल किया जाता है। अपील में आप जाएंगे तो अपील में आप एलपीए फाइल कर सकते हैं, लेटर पेटेंट अपील्स, आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो, आप फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हो, ये आपके आरएफए फाइल कर सकते हो। और आपको कोई ऑर्डर रिवाइज करना है, somebody is asking something, I think somebody raising Inder, yes Inder. Ma'am, I have one more question. Suppose a civil suit has been instituted in Agra, and suppose the order for amendment was passed from the Civil Court Junior Division. So, like, I requested for an amendment. Suppose the time has elapsed for 10 years. And now, if I want an order for the amendment to be made, so if I go directly to the High Court, will that not be correct? आपको सबसे पहले 110 की एप्लीकेशन, सॉरी 617 की एप्लीकेशन सबसे पहले आपको ट्रायल कोर्ट में लगानी चाहिए पड़ेगी कि मुझे अमेंडमेंट चाहिए और क्यों चाहिए, आपको रेलेवेंट रीजन देना होगा। अगर वहां नहीं होता देन यू हैव टू गो टू दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, यू कैन फाइल दिस एलपी आल्सो फॉर दिस अमेंडमेंट। काफी सारे डोमेस्टिक वायलेंस मैटर्स में भी होता है ये, और काफी सारे प्रॉपर्टी मैटर्स में भी होता है। यू आर राइट, यस यू आर आस्किंग समथिंग। Yes, ma'am. There is one statute which is Agra Civil Courts Act. उसके अकॉर्डिंग मतलब ये बताया गया है if it's a junior division case then it should go to the senior division it seems. हाँ वो हायरार्की हो गई ना, जूनियर के बाद आप जैसे डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली में है, आई थिंक वहाँ पे सीजीएम होते हैं आगरा में। जी मैम, सीजीएम कोर्ट्स होते हैं ना, है ना। मैं रोहतक और मुजफ्फरनगर तो मैं ट्रायल के लिए गई हूँ, और एक हमीरपुर करा है मैंने, आगरा को तो नहीं, बट आई थिंक मेरे यहाँ सीजीएम्स होते हैं। तो उसके लिए जैसे हमारे यहाँ एडीजी होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद हमारी सेशन कोर्ट में भी जाती है, बट मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाता है। मतलब लाइकली टू बी मैं बोलूंगी वो एडमिट करते नहीं है। लेकिन वो डिसमिस कर सकता है क्या? हाई कोर्ट कैन दी हाई कोर्ट डिसमिस दैट पर्टिकुलर क्लेम मतलब फॉर द अपील एंड सेंड इट डायरेक्टली टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसा हो सकता है क्या? वो उनको वो कर सकते हैं, डायरेक्शंस दे सकते हैं, बट आपके पास रेलेवेंट रीजन होना चाहिए। आप क्यों अमेंडमेंट चाह रहे हो, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन में। ओके मैम। हाँ, स्पेसिफाई कोई ऐसा हो तो यू कैन आस्क मी सेपरेटली आल्सो आफ्टर दिस सेशन, मैं आपको हेल्प करूँ। ठीक है, ठीक है। अभी हम बात करते फर्स्ट अपील की, कि अगर आपके नीचे जो है, जैसे अभी उन्होंने बताया कि मान लीजिए एडीजी का ऑर्डर है वो डिसमिस हो गया, देन यू हैव टू गो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज नीचे, और वो भी डिसमिस हो गया तो फिर आप फर्स्ट अपील में आओगे दिल्ली हाई कोर्ट। और फर्स्ट अपील में भी आपको कोई वो केस नहीं होता, डिसमिस हो जाता है, तो आपके पास प्रोविजन होता है कि या तो आप सेकेंड अपील फाइल करो, या आप ऑर्डर भी मॉडिफाई करा सकते हो कि यहाँ पर ये करेक्शन है इस ऑर्डर में,
या आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो अगर आप सेकेंड अपील फाइल करते हो तो सेकेंड अपील के ऑर्डर को आप सुप्रीम कोर्ट फाइल कर सकते हो। एसएलपीज में, एसएलपी होता है स्पेशल लीव पिटिशंस, सुप्रीम कोर्ट का ही प्रोसेस होता है। हाई कोर्ट की रिट्स के बारे में आप बताएं मुझे, रिट्स कितनी होती हैं प्लीज, आप सब लॉ स्टूडेंट हो, ये मैं जनरल नॉलेज नहीं दूंगी आपको। कितने कितने काइंड्स ऑफ रिट्स होती हैं, कोई बताएं मुझे। 5 5 कि नाम बताएं आप मुझे, रिट्स के बारे में बताएं, कौन कौन सी रिट होती है। habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warranto, and I just Prohibition. forgot. Yeah. वेरी गुड। आई थिंक गुरकीरत ज्यादा पढ़ता है ना सबसे। Ma'am, I'm a working lawyer. अच्छा, यू आर ए वर्किंग लॉयर। तो यू आर, तो तुमने तो बोला लॉ स्टूडेंट हो आप। नहीं, मैं नहीं बोला, वो दूसरे उन्होंने बोला। अच्छा, यू आल्सो फ्रेशर गुरकीरत। No, no, ma'am. I have 3 years of experience, so I am just a budding lawyer. अच्छा, चलो अच्छी बात है, और ये होना चाहिए, मगर आप लोगों को ज्यादा पता होना चाहिए। गुरकीरत तो लॉयर है, बट आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, बिकॉज यू ऑल आर लॉ स्टूडेंट और ग्रेजुएशन आप लोग कर चुके हो अपना, अभी एलएलबी 3 इयर्स कोर्स में हो। अब हम सुप्रीम कोर्ट की ड्राफ्टिंग के पास आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ड्राफ्टिंग के लिए अब आपको सबसे पहले हमारा शुरू करते हैं एसएलपी से, स्पेशल लीव पिटीशन। तो अब गुरकीरत तुम ही बताओ, एसएलपी में क्या हम इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट आ सकते हैं एसएलपी में? No, ma'am. कोई ऐसे नीचे ऑर्डर हुआ है, जैसे अभी इसने मुझे बोला कि मुझे अमेंडमेंट चाहिए, इंदर ने पूछा हमसे कि कोई अमेंडमेंट चाहिए, तो हम कर सकते हैं ऐसे 6-17 की? अमेंडमेंट तो कर सकते हैं मैम। हाँ, तो ये इंटरिम ऑर्डर ही तो हो गया, कोई मतलब परमानेंट ऑर्डर की बात नहीं हो। नहीं, परमानेंट ऑर्डर नहीं कर सकते हैं amendment। एसएलपीज होती हैं जो हम हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, अगर आपको लगता है ये इम्प्यून जजमेंट है या इसमें कुछ एरर्स हैं और हमें अपील में जाना चाहिए, हाई कोर्ट ने यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स करी हैं इस ऑर्डर में, या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उन्होंने फाइंडिंग नहीं करी है, या जजमेंट्स में ऐसे कुछ एरर आ रहे हैं जो आपको लग रहा है कि ये मैंने रिवाइज ऑर्डर भी डाला, रिवीजन पिटीशन भी डाली, उसके बाद भी इन्होंने उसको करेक्शन नहीं करा, या कहीं पे कुछ चीजें छूट रही हैं हाई कोर्ट से, आपको लगता है, तो आप ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली एसएलपी में फाइल कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्टली आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपको सबसे पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई स्टेट लेवल या स्टेट डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई मैटर है तो पहले आपको हाई कोर्ट्स में केस फाइल करना चाहिए, और वहां आपको रिलीफ नहीं मिलता तो यू कैन कम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। और आपको लगता है कोई सेंट्रल से रिलेटेड कोई केस है, जैसे इनकम टैक्स के मैटर्स होते हैं, सेस स्टेट के मैटर्स होते हैं, इन अपील्स में आप हाई कोर्ट भी जाते हैं अगर कोई स्टेट से रिलेटेड है, और कोई सेंट्रल से रिलेटेड है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे डायरेक्टली। तो सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन क्या क्या होता है, ओरिजिनल साइड वहां भी होता है, एपेलेट भी होता है, ऑर्डिनरी भी होता है। अब वहां पे ओरिजिनल साइट्स में क्या होता है, जहां पर दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स है किसी टैक्स मैटर से रिलेटेड, कि अगर कोई स्टेट लेवल का कोई टैक्स आपके यूनियन को इफेक्ट कर रहा है या उनके लॉज यूनियन को इफेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आप डायरेक्टली सूट्स फाइल कर सकते हैं। एक से दो या 3-4 जितने भी स्टेट्स हैं वो सूट फाइल डायरेक्टली कर सकते हैं वहां पर। एसएलपीज आती हैं अपील्स में, वहां पे अपील क्या होती है, कोई भी इम्प्यून्ड ऑर्डर है किसी भी हाई कोर्ट का, उसके अगेंस्ट में आप सीधा सुप्रीम कोर्ट एसएलपी फाइल कर सकते हैं। फिर आते हैं हमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो काफी लोगों को बहुत पसंद होता है, जैसे एमसी मेहता के मैटर्स आप लोग पढ़ते होंगे। कोई भी ऐसा इशू जो पूरी पब्लिक को या फिर हमारे डेमोक्रेटिक कंपनी पूरी कंट्री को कुछ भी इफेक्ट कर रहा है, तो आप डायरेक्टली पब्लिक लिटिगेशन में जा सकते हैं, आप पीआईएल फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपका जो मैंने आपको बताया था, रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहां पर वाटर सप्लाई या कुछ इस तरह की आप बिल पे कर रहे हो और उसके बाद आपके मीटर्स में आ रहा है, आप कई बार कंप्लेन कर चुके हो, वहां पे कम से कम 1000 लोग या फिर लैक्स की तादाद में ऐसे लोग हैं जो इलीगल आपसे एक बिल जो गवर्नमेंट का है उसके अलावा भी बहुत कुछ लिया जा रहा है। जैसे अभी सिलेंडर वाला इशू चल रहा है, आप लोग सुन रहे होंगे न्यूज में, कि जो एक एक्चुअल रेट है उसके अगेंस्ट में कुछ हो रहा है, तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलकर आप पीआईएल फाइल कर सकते हो। इसी तरह रिट पिटीशन में भी अगर आप एक एसोसिएशन बनाकर किसी भी, मैंने आपको पेंशन मैटर्स का भी एक एग्जांपल दिया था,
तो वहां पर भी आप रिट पे कोई भी रिट लगा सकते हैं। ये हमारा पूरा जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का होता है। सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जब भी आए तो थोड़ा सा देखें पहले हमारा हाई कोर्ट का इम्प्यूग्न ऑर्डर क्या कह रहा है। ये नहीं आप डायरेक्टली आ जाएं, क्योंकि बहुत मतलब अपने अपने ही हम लॉ की एक इंसल्ट या बेइज्जती करेंगे कि हम कुछ भी फाइल कर रहे हैं विदाउट सीइंग ए इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट। कुछ लॉयर्स होते हैं बस उनको ये होता है कि कुछ भी करना है बता देते हैं हो जाएगा, पर ट्रायल मत करें क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि जो भी परेशान है या फिर एक क्लाइंट हमारे लिए कहें कि एक बच्चे की तरह होता है, जो परेशान है तभी आपके पास आ रहा है और मैम आपको हाई उसकी कोर्ट में तो काफी जजेस डांट देते हैं इस बात पे। सुप्रीम कोर्ट में भी डांटते हैं। कुछ लॉयर्स गलत करते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और उनके लिए रेमेडी देख सकते हैं तो आपको करना चाहिए। मतलब बीइंग ए आप कुछ भी बने, मतलब अच्छा बने, जो भी लॉयर बने, किसी भी जाए, आप कॉर्पोरेट में जाए, लिटिगेशन में जाए या किसी डिपार्टमेंट में आप करें, पर अच्छा करें। ये ना हो इवन आप कोई एज ए आर भी है किसी कंपनी में, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, आपको पता है ना कॉर्पोरेट्स में होते हैं या एमएनसीज में होते हैं, वहां पे भी अपने जो भी आपके ऑफिस के कंपनी के लोग हैं उनको ऐसी ओपिनियन दे कि आप कोई ऐसा फालतू का केस ना करें जिससे हमारी लिटिगेशन बढ़ती रहे। काफी सारे दिल्ली के ऐसे एरिया हैं, दिल्ली क्या इवन यूपी चले जाएं, कि एक एक प्रॉपर्टी 20 नहीं 50 बार बिक चुकी है। और काफी ऐसे विल अब एग्जीक्यूट करने लगे हैं लॉयर्स, जो बहुत इलीगल होती हैं, जिससे हमारी लिटिगेशंस बढ़ रही हैं। उसमें जजेस भी कुछ नहीं कर सकते, उन्हें पेंडिंग रखना पड़ेगा जब तक फाइनिंग होगी, बिकॉज हमारा जो प्रोसेस है उसको हम बीच में नहीं रोक सकते और जजेस उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे अगेंस्ट कोई भी ऐसा एफएसएल रिपोर्ट या कोई भी ऐसा सिग्नेचर या कुछ भी ऐसे आ जाए, उसमें हमारे क्लाइंट की बेइज्जती नहीं है, हमारी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्लाइंट अच्छा पैसा दे रहे हैं और वो कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट लेकर फाइल करा रहा है तो हम कर दें। देखिए, एक बार तो शायद आप अच्छा कमा लेंगे और इस बिहाफ पर आपका लाइसेंस कभी रद्द हो गया तो ये पब्लिकली बहुत बुरा होता है। आप मतलब खुद ही गिल्ट फील करोगे कि हम कर क्या रहे हैं। तो हम लोगों को भगवान का दूत माना जाता है। भगवान पहले फैसले लेते थे ना कि कोर्ट कचहरियां लग रही हैं उनके आगे, तो अब हम जज को बताते हैं कि क्या है। जज को तब फैसला लेना होता है, तो हमें जो भी करना है अच्छे से। और हमारा Yes, ma'am, definitely. So I guess we are done with this session, and right now we can get into the Q&A part of the session. So anyone who has their questions and we're not able to ask in the meeting, they can right now ask their questions. You can turn on your mic and ask the questions, or you can drop it in the chat box as well. Either of it works. So yeah, we can start with the questions now. Anyone has any questions? इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है, हम लोग शुरू में ऐसे ही होते हैं सब, हमारे भी क्वेरीज होते थे। यू कैन आस्क, अच्छा लगेगा मुझे आप लोग पूछोगे तो। मैम एक क्वेश्चन है, हाँ, और आपने सिविल मैटर में बताया था कि अगर फाइनल आर्गुमेंट के बाद अगर डिक्री हो जाए और अगर 12 ईयर तक ऑर्डर कंप्लाई ना हो, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन फाइल करेंगे हम्म। और उसके बाद फिर कंटेम्प्ट कर सकते नहीं हैं। नहीं, मैंने बताया था 12 ईयर तक डिक्री की वैलिडेशन रहती है। ओके। उसके बाद फिर आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कराते हो। ओके मैम। हम्म। हाँ, अब आप बताओ क्या पूछे थे आप, एक बार प्लीज रिपीट कर दो। Yes, ma'am. ही इज आस्किंग समथिंग ना। दीपाली आप बोलो आप दीपाली। मैम एक्चुअली वो मेरा क्वेश्चन पहला जो था ना वो आधा रह गया था, तो मुझे ये पूछना था मैम कि हाउ डू वी फाइल कॉन्डोनेशन और उसका क्या प्रोसेस रहता है? कॉन्डोनेशन का प्रोसेस क्या रहता है? यू हैव टू फाइल वन एप्लीकेशन मैम। सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी। 151 एक ऐसा सेक्शन है जो आप कहीं पर भी फाइल कर सकते हो। आपको कोई डॉक्यूमेंट लगाना है तो आप उसके लिए फाइल कर सकते हो, या आपका कोई पेपर रह गया उसके लिए 151 लगा सकते हो। वो सुप्रीम कोर्ट तक सेक्शन 151 चलता है। तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले में आपको बताना पड़ेगा आपकी डिले क्यों रही है।
मान लीजिए आपका सिविल सूट है और आपने उसकी लिमिटेशन काफी निकल गई है कि आपने वो फाइल नहीं करा है, तो आपको वहां पे डिले बतानी पड़ेगी कि मेरा क्लाइंट जो है मेडिकल प्रॉब्लम थी उसकी, या फिर हमारा डॉक्यूमेंट नहीं था। कोई डिपार्टमेंट का केस अगर है कि आप कोई गवर्नमेंट काउंसिल हैं या किसी डिपार्टमेंट के थ्रू आप अपेयर हो रहे हो, तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि हमारी डिले इसलिए थी कि हम पहले किसी सीनियर से या अटॉर्नी से अपनी लीगल ओपिनियन ले रहे थे। वो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है आपकी डिले कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन में, कि आपकी मान लीजिए 1000 डे की भी डिले होती है सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप एसएलपी फाइल करते हो तो बहुत साल बाद याद आता है हमें एक बार एसएलपी फाइल कर देनी चाहिए थी, और अब डिले हो गई है। तो हमें रीजन देना पड़ेगा कि हमारी डिले क्यों थी, उसमें रीजन आपको वैलिड होना चाहिए कि आप एक्सप्लेन कर पाओ। अगर बाय चांस आपसे मेडिकल डॉक्यूमेंट मांग लिए जाए आपके क्लाइंट के, तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ। Okay, ma'am. Thank you. Yes, Atharva, you can ask your question. Atharva, you can go ahead with your question. मैम मुझे एक क्वेश्चन है, बिगिनर स्टार्टिंग में सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं जो अवॉइड करनी चाहिए? सॉरी, आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। आपका था कि ड्राफ्टिंग में मेन क्या? जो ड्राफ्टिंग में मेन मिस्टेक्स होते हैं जो बिगिनर्स अवॉइड करनी चाहिए हमें। अवॉइड क्या करनी चाहिए? आप कभी भी कोई ऐसा फैक्ट्स जो मेरे को तो नहीं है ही नहीं जो, अगर जो आपको लग कॉमन रहा है। मिस्टेक्स होती है हाँ हाँ, आप कोई भी वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। ड्राफ्टिंग में कोई भी ऐसी चीज मत लिखो जो नहीं है। अभी मैंने आपको लास्ट में बोला कोई भी ऐसा फॉर्ज डॉक्यूमेंट लगा कर आप उसको वैलिड बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप एक अगर झूठी विल भी लगाते हो ना, तो आपके रजिस्ट्रार को या सब रजिस्ट्रार को कॉल आउट किया जा सकता है और उसका भी वहां पे एविडेंस होगा। या आपके सिग्नेचर के लिए अगर एफएसएल में भेज दिया गया है और एफएसएल रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, तो वो आपके क्लाइंट के लिए नहीं, वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगी, है ना। नेक्स्ट Yes, Atharva, you can ask your question. ऋतुजा। हाँ, यस यस, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून गुड मैम। आफ्टरनून। ऐसे पूछना चाहती हूँ कि कॉर्पोरेट लॉ में लीगल ड्राफ्टिंग का अदर देन कॉन्ट्रैक्ट क्या अपॉर्चुनिटीज रहते हैं? कमर्शियल में तो, कॉर्पोरेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा, क्योंकि वो उनके पास क्या होता है, रिटेनरशिप्स होती हैं बहुत सारी कंपनीज की। आप लॉ फर्म्स देखोगे या कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स के कॉर्पोरेट साइड देखोगे, तो वो सारा काम ही ये करते हैं। उनके 2 पार्ट्स होते हैं फर्म्स के, लिटिगेशंस अलग होती है, कॉर्पोरेट अलग होता है। तो कॉर्पोरेट में आपके कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। कंपनीज में कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो 2 पार्टीज के बीच उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। ये कोई एमएनसीज के आप एआर हैं, तो वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट्स की बड़ी, या फिर इंटरनेशनल लेवल का कोई आर्बिट्रेशन है जिसमें भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े डिपेंड करते हैं, वो अलग अलग होता है उसका सबका कॉर्पोरेट का। कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी मेन सब्जेक्ट मैटर देखा जाता है। मान लीजिए कोई इंटरनेशनल ट्रेडिंग है, तो वहां पर भैया आपको जुरिडिक्शन मेंशन करना पड़ेगा। आप लोग किस चीज का बिजनेस कर रहे हो, यू हैव टू एक्सप्लेन देयर सब्जेक्ट मैटर। आपका जुडिक्शन, मान लीजिए आपने क्लॉज डाला है आर्बिट्रेशन का, आप लिटिगेशन का नहीं डाल रहे हैं क्लॉज। बेसिकली वैसे कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन से लिखी जाती है, तो आर्बिट्रेशन आपकी कहाँ होंगी? आपका, अगर आप दिल्ली का एक क्लाइंट है और आपका एक क्लाइंट है आपका यूएस का, तो आप उसमें अपना डालेंगे कि ऑप्शन जुडिक्शन का कि कहाँ पर आपकी होगी। एक होता है आपका मॉनेटरी, मेन आपका मतलब अमाउंट कहाँ का लिखा जाएगा, क्योंकि हमारी करेंसी और उनकी करेंसी में बहुत फर्क है। और कोई नेशनल लेवल का है, मान लीजिए बेंगलोर और अयोध्या का कोई मैटर है, तो जुडिक्शन कहाँ का दिया जाएगा। ये हमारे कोल इंडिया के मैटर्स में बहुत होता है, तो उसमें लिखा जाता है कि आप आर्बिट्रेशंस कहाँ करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, बताएं और कोई, एनीवन? मैम मैं कहना चाह रहा था कॉन्डोनेशन और डिले पे तो क्या कहते हैं, लिमिटेशन अपनी तो इट्स मतलब इन इटसेल्फ उसकी कोई नहीं होती। क्या 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 मतलब? जैसे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले तो है ही डिले के लिए ना। हाँ, कि इन इटसेल्फ तो चाहे जितना मर्जी डिले कर सकते हैं हम लोग, मतलब चाहे साल 3 साल बाद भी डिले तो लगेगी। वो तो है ही, मैं तो समझा ही रही हूँ आपको। डिले अगर आपकी हो जाती है तो आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा किसी भी तरह। नहीं मैम, वो क्वेश्चन कर रहे थे ना कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इटसेल्फ की कितनी कोई लिमिटेशन होती है कि नहीं, मतलब उसके वो अपने तो आप। मैं कह रही 1000 डेज की भी होती है। हाँ हाँ, यस। आप अभी देखो, कोविड से पहले लोगों ने एडवांटेज लिया है
एक तो उनकी डिले पहले की थी और फिर वो 2 साल का जो हमें लिमिटेशन का वो मिल गया था एक्सेप्शन, उसके बाद लोगों ने और फायदा उठाया है। यस मैम। मैम अभी भी केसेस हाई कोर्ट में है तो वहाँ पे काफी देर डिले के बाद भी लोग दे देते हैं, मतलब कंडीशन ऑफ डिले। पर एक बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, अगर उन्हें लगता है रेलिवेंसी है केसेस में तो डिले भी कंडोन कर देते हैं। बहुत सारे मैटर्स में होता है, चाहे वो नोटिस करे ना करे, बट डिले कंडोन कर देते हैं। यस मैम। मैम यहाँ पर भी काफी बारी तो जजेस कोशिश करते हैं कि लिमिट लगा सके उस पर, बट वो होती नहीं है क्योंकि बट कभी कभी उन्हें लगता है ना इनके साथ गलत हो रहा है, या कब सबको पता होता है, मतलब हम भी कभी जजेस जो होते हैं वो भी कभी लॉयर रहे होते हैं। यस मैम। है ना? तो एनीवन है, कोई और पूछना चाहता है कुछ? यस मैम। अमोल। यस। ड्राफ्टिंग के कितने पार्ट्स होते हैं और फर्स्ट पार्ट में क्या आना चाहिए, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में और लास्ट पार्ट में क्या क्या आना चाहिए? ड्राफ्टिंग के कितने पार्ट्स होते हैं ये तो डिपेंड ऑन द कोर्ट से, मैंने आपको बताया। अब मैं आपको नीचे का तो मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुकी हूँ, एसएलपी का मैं बता देती हूँ। एसएलपी में सबसे पहले लिस्ट ऑफ डेट्स होते हैं, फिर उसके बाद आपको ब्रीफ फैक्ट्स देने पड़ेंगे कि आपका केस क्या है। देन यू हैव टू मेंशन देयर क्वेश्चन ऑफ लॉ कि आपके क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है। आप ग्राउंड्स कितने बना सकते हो, ये इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, आप जितना चाहे आप बना सकते हो। उसके बाद आपकी इंटरिम प्रेयर है, डिक्लेरेशन है, फिर आपकी मेन प्रेयर होती है। तो इसके पार्ट्स अलग अलग होते हैं, कोड वाइज होते हैं। रिट का अलग स्ट्रक्चर होता है, एसएलपीज का अलग होता है, एलपीए का अलग होता है, इवन एग्जीक्यूशन हो गया उसका भी अलग होता है। तो ड्राफ्टिंग के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आप जिस सब्जेक्ट के ऊपर बोलोगे वो डिफरेंट होता है। थैंक यू। एनीवन एल्स? somebody is raising a hand. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Harshpreet. मैम आई वाज आस्किंग कि जब हम फैक्ट लिखते हैं तो जो फॉरेंसिक रिपोर्ट में डिटेल्स वगैरह आती है वो भी हमें फैक्ट्स में इंक्लूड करनी होती है, जो भी रिपोर्ट्स हैं? हाँ, आप क्यों नहीं, अगर आपका कोई क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है और एफएसएल रिपोर्ट मीनवाइल आ गई है तो आप बेल में मेंशन कर सकते हो अपने क्लाइंट के लिए। स्पेशली फैक्ट्स में या सिर्फ रिपोर्ट ऐड करनी होगी? नहीं, स्पेशल है, उसमें लिख सकते हो फैक्ट्स में कि एफएसएल रिपोर्ट आई है, इन्होंने बोला ये था केस डायरी में कि मेरे को इस चाकू से मारा गया, जो पुलिस ने नोट डाउन करा था एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट। मगर जो एफएसएल रिपोर्ट आई है उसमें रिपोर्ट आई है, आप अच्छे से मेंशन कर सकते हो फैक्ट्स में। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। मैम मेरा एक और क्वेश्चन था कि अगर हम लोग क्लाइंटेल बना रहे हैं अभी एज अ यंग लॉयर तो उसमें काफी डिफिकल्टी आती है, तो एज अ सीनियर लॉयर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कुछ? आप कभी भी आओ मेरे पास, आई एम रियली हैप्पी एंड इवन आई एम राइटिंग ए बुक्स आल्सो। अभी मैंने पोस्ट मैटर पे भी लिखी है ना, आई एम राइटिंग ऑन द चाइल्ड अब्यूज और हैरेसमेंट। तो आपको कभी भी मेरी हेल्प चाहिए, आई एम रेडी। श्योर मैम, श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Okay, I guess excuse me, only ma'am. Tanuja. Yeah. यस, चलो तनुजा को पूछने दो। यस तनुजा, प्लीज आस्किंग। मैम एक्चुअली एक सीन है, मतलब कि असॉल्ट का केस है चाइल्ड अब्यूज टाइप में। सो मतलब जब विक्टिम को फोर्स करके उसका जो बयान था वो वापस लेने के लिए बोला, मतलब कि लाइक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, एंड उसने वो कुछ सब मतलब कोर्ट में बोल भी दिया एंड वो उसका जजमेंट भी आ गया है। द केस वाज ऑफ 2016। तो उस पर अभी कुछ कर सकते क्या, ये शी वांट्स टू टेक सम एक्शन? और उसके स्टेटमेंट अभी भी सेम है तो यू कैन गो फॉर द अपील आल्सो। अब